وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی، انصاف کی جلد فراہمی کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 کی جائے گی۔ دونوں بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم کے بل بھی ایوان نے منظور کر لیے۔ ججز کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بل بھی منظور۔ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو، چیف جسٹس پاکستان کی صدارت میں اجلاس آج ہوگا۔ پارلیمنٹ کی پہلی بار جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی، 5 ارکان کمیشن کے رکن، آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے ایجنڈے پر۔ حکومت ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے دن رات کوشاں، ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی بھی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی ہے، ہمارے نوجوان دنیا کے منظرنامے کو منفرد شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا نیشنل یوتھ سمٹ سے خطاب۔ ایس ای ایف سی کی کاوشوں کے ثمرات، مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 48% اضافہ، جولائی تا ستمبر 77 کروڑ ڈالر سے زائد کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ۔ پاکستان میں مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری 70% اضافے کے ساتھ 90 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ مختلف ممالک مزید براہ راست سرمایہ کاری کے خواہش مند۔ خیبر پختونخوا میں ہر شعبہ زبوں حالی کا شکار، صوبائی حکومت انتشار اور پرتشدد احتجاج کی سیاست میں مصروف، تعلیم کا شعبہ بھی نااہلی کی بھیڑ چڑھ گیا، صوبے میں قوم کے معمار رل گئے، پرائمری اساتذہ سراپا احتجاج، آج سے اسکولوں کی تالہ بندی کا اعلان۔ پاکستان اور ملیشیا کی مشترکہ فوجی مشق، ہریماؤ مارخور 2 کا انعقاد، 2 ہفتوں پر محیط مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری رہیں گی۔ سابق فوجی کمانڈو دستوں کی شرکت، مقصد دونوں ملکوں کی مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانا ہے۔ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہوگا۔ کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع، پوری دنیا کی نگاہیں آج ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب پر۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 16 کروڑ سے زیادہ، 50 ریاستوں میں 538 الیکٹورل ووٹ، صدر منتخب ہونے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ کی ضرورت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر رات بھر اسرائیلی بمباری میں مزید 33 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بیت اللحیہ پر بمباری میں 20 جبکہ غزہ شہر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کے کمال عدوان پر بھی بمباری، مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 1 شخص شہید۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی جاری 1 شخص جاں بحق۔ لبنان اور عراق سے اسرائیلی شہر حیفا پر میزائل حملے، شہر میں سائرن بج گیا۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل، 2 ماہ میں دوبارہ بھارتی MiG 29 طیارہ گر کر تباہ۔ طیارہ تربیتی پرواز کے دوران اتر پردیش کے شہر آگرہ کے قریب گرا، ایک کے بعد دوسرے طیارے کی تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا۔ بھارتی ریاست آسام میں حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں علیحدگی پسند تحریک زور پکڑنے لگی۔ احساس محرومی، معاشی عدم مساوات اور ثقافتی زوال کے باعث باغی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔ بے روزگار نوجوان کیرالہ، حیدرآباد، گجرات کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور۔ بھارتی حکومت کی ناانصافیوں کی وجہ سے علیحدگی پسند تحریکوں کا 1970 کی دہائی سے آزاد آسام کا مطالبہ۔
اہم خبر آپ کو دیں گے، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد ہوئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد ہوئی ہے۔ یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مرکزی دروازے پر موجود ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جنہوں نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی وزارت خارجہ پہنچے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تہنیتی جملوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور تجارت و سرمایہ کاری، توانائی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں، یہاں پر ان کی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی، اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور تجارت اور سرمایہ کاری، توانائی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات ہوگی۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان اور ایران کے بارڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ ایران نہ صرف پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے بلکہ برادر اسلامی ملک بھی ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر قبل وہ وزارت خارجہ پہنچے ہیں۔ یہاں پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی، اور پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تجارت کے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ توانائی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ اس وقت جو پاکستان میں موجود ہیں، اور اپنے اس دورے کے دوران ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ جب وہ وزارت خارجہ پہنچے تو اس وقت ان کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ بھی کیا گیا، تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ رات ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے تھے اسلام آباد، اور اس کے بعد آج وہ اب سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر آپ دیکھتے ہیں جب وہ پہنچے وزارت خارجہ، جہاں پر موجود تھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جنہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا، گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا گیا، اور اہم ملاقاتیں ہوں گی ان کی، اور وزارت خارجہ کے اندر ان کی جو آج وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی پاکستان اور ایران کے درمیان۔ بالکل انتہائی اہم دورہ ہے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج وزارت خارجہ پہنچنے پر معزز مہمان کا استقبال کیا، پرجوش یہاں پر مصافحہ بھی ہوا۔ یہ ویژولز اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک، برادر اسلامی ملک، اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ دورے ہوتے رہے ہیں۔ اس دورے کو بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے پاکستان ایران تعلقات کے حوالے سے، اور پاکستان اور ایران کے درمیان خاص طور پر جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور پاکستان اور ایران کا جو موقف ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر اپنی جو بربریت کا سلسلہ ہے اس کو بند کرنا ہوگا فلسطین میں، اور مسلم امہ کا بھی یہی موقف ہے، اور اسی موقف کو پاکستان اور ایران بھی دہراتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں، جن شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری ہو سکتی ہے ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جن شعبوں میں اتفاق ہوگا ان پر جو ہے وہ مختلف معاہدے بھی متوقع ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ ایرانی وزیر خارجہ کا عباس عراقچی جو ہیں ان کا وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا جو ہے وہ دورہ ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے ان کے اس دورے میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔
अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना के इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। कल के इजलास में ऐवान ने इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक अहम कानून साजी की है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 की जाएगी। ऐवान ने दोनों बिल मंजूर कर लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी पास किया गया। ऐवान ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर किए। इजलास की तफसील अरसलान असद से। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। जिसके बाद वजीर कानून ने जिमनी एजेंडा के तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी बिल 2024 पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल की शिकवार मंजूरी ली, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जाएगी। इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का, उससे भी निपटा जा सके 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बार बॉडीज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बहुत देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। वज़ीर कानून आजम नजीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम के बिल भी पेश किए, जिनकी कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम के बिल का मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएंगे। बिल में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद न हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम के बिल भी पेश किए, जिनकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। इन बिल्स में कहा गया कि मुद्दत मुलाजमत के दौरान ताइनाती, दोबारा ताइनाती या एक्सटेंशन की सूरत में तीनों सर्विसेज चीफ्स अपनी अपनी फोर्स के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल्स की कापियां फाड़ दी। अरसलान सद खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक कानूनी बिल्स और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी कानूनी बिल्स की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी बिल 2024, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किए। सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2024 और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। बिल वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश किए। सदर नशीन इरफान सदीकी की सदारत में होने वाले इजलास में सेनेट ने कारखाना जात तरमीमी बिल 2023 और गार्जियंस और वार्ड्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिए। बिल सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने पेश किए। ऐवान ने वाबडा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2024 और पाकिस्तान एनिमल काउंसिल बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी। सेनेट ने मोटर बाइक्स हादसात में इंसानी जानों के नुकसान को रोकने के लिए करारदाद और शनाख्ती कार्ड में नामालूम वल्दियत के हवाले से मखसूस कॉलम शामिल करने की करारदादें भी मंजूर की। सेनेट में रूसी फेडरेशन की फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर के हालिया दौरा पाकिस्तान के हवाले से तहरीक भी मंजूर कर ली गई। तहरीक में कहा गया है कि सेनेट इस दौरे को पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को फरोग देने में अहम संग मील करार देता है। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
यहाँ पर एक और अहम खबर आपको देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी और कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम के मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा इजलास में अटार्नी जनरल मंसूर आवान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक इचनाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शरीक होंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद और नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान हुनरमंद नौजवानों का मुल्क है। नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि नौजवान हर फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए। Most developed countries in the world, they are faced with an aging population. They lack a skilled workforce. In Pakistan, we have abundance of great innovators in the youth who are playing their role in reshaping our society, our community, and our economy. The world over, the people tell us that Pakistan's youth not only has great potential, but Pakistan's youth can reshape the future of the world because we are heading towards a common shared future. वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने कहा कि हमने फ़लस्तीन के 200 तलबा को पाकिस्तानी इदारों में दाखिले दिए। इजराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम आलम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। As far as the youth of Gaza is concerned, I'm proud that we have over 200 medical students from Gaza studying in Pakistan right now. We understand the dilemma that young people who were carrying out their medical studies were not able to complete their studies because of the constant war that has been imposed upon the innocent people of Palestine. And there's a genocide going on, make no mistake about it. So Pakistan is a friend of Palestine, and we have extended our fullest support to the youth of Palestine so they can complete their medical studies. So there is no shortage of doctors in the great state of Palestine. खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों की बदौलत रवां माली साल की पहली तिमाही में पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का नुमाया इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान $771 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है, जो गुज़श्ता साल के $520 मिलियन से ज़ायद है। साला साल की बुनियाद पर रवां माली साल में बराह रास्त 81% इजाफे के साथ $385 मिलियन तक पहुँच गई, जबकि गुज़श्ता माली साल में ये $213 मिलियन थी। पाकिस्तान में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 70% का इजाफा हुआ, जो रवां माली साल के इसी अरसे में $530 मिलियन से बढ़कर $903.5 मिलियन तक पहुँच गई। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकॉन्ग, बरतानिया और अमरीका की जानिब से सरमायाकारी की जा चुकी है। पाकिस्तान बराह रास्त सरमायाकारी के जरिए अपने इक्तसादी, माहौलियाती और समाजी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमट रहा है, जिससे पायदार तरक्की की राह हमवार हो रही है। और माशी महाज पर इंतहाई अहम खबर, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 2.5% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 17.5% से कम होकर अब 15% पर आ गया है। फैसले से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मरकजी बैंक की जानिब से मालियाती कमेटी के इजलास में अराकीन ने मुशाहिदा किया कि महंगाई की शरह तवक्कुत से ज्यादा कम हुई, जबकि माह अक्टूबर में अपने वस्त मुद्दती हदफ के करीब पहुंच गई, जबकि सख्त ज़री पॉलिसी ने महंगाई में कमी के रुझान को बरकरार रखने में बदस्तूर किरदार अदा किया। ज़री पॉलिसी कमेटी ने इस बात का भी मुशाहिदा किया कि ग़िज़ाई महंगाई में तेजी से कमी, तेल की साजगार आलमी कीमतों और गैस टैरिफ और OPDL रेट्स में मुतवक्को रद्दोबदल की अदम मौजूदगी ने अर्जानी की रफ्तार बढ़ा दी है। माशी तज्ज़ियाकार भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से मईशत के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हैं, जिसके बायस मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। वहीं स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट्स कमी माशी तरक्की की रफ्तार को मजीद रवा रखने में अहम साबित होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में 2.5% की कमी की और वो 15% पर आ चुका है। इससे मुल्क की मईशत पे बड़े पॉजिटिव असरात
مرتب ہوں گے. ملکی قرضوں میں زبردست کمی واقع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو سہولت ہو جائے گی کہ وہ مختلف کمپنیوں کو اچھے سے اچھا لون دے سکتے ہیں. ان کی لیکویڈیٹی میں اضافہ ہو جائے گا, لون دینے کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کمپنیاں, بہت ساری انڈسٹریز جو کہ لیوریج پر ہیں, جو کہ جنہوں نے بورو کرے ہوئے ہیں فنڈس, ان کے فائنینشیل کاسٹ میں زبردست کمی واقع ہوگی, اور وہ اس کمی کو یقیناً پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کہ مہنگائی کو 40% سے سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا, اس کے علاوہ ڈالر کو سٹیبل رکھنا. تیسری اہم بات کہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کمی مسلسل دیکھی گئی. ان تمام وجوہات کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے جب جائزہ لیا تو پھر اس کے نتائج یہ آئے کہ آج پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹس کوئی 1% یا 50 بیسس پوائنٹ کم نہیں ہوئے, بلکہ یک مشت 2.5% نیچے آنا بہت ہی بہترین اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی وجہ سے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ, IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کا ملکی معیشت پر اطمینان اور مختلف ممالک کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں بڑھتا ہوا رجحان, جبکہ پالیسی ریٹ کو کم کرنا معیشت کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو رہے ہیں. محمد زبیر الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. اور اب خبر آپ کو دیتے ہیں PSX سے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس نے ایک بار پھر 92,000 کا ہندسہ عبور کر لیا ہے. مارکیٹ 129 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 92,067 پر ٹریڈ کر رہی ہے. گزشتہ روز مارکیٹ 1,078 پوائنٹس کے اضافے سے 91,938 پر بند ہوئی تھی. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, ہمارے نمائندے ذیشان احمد ہمیں آگاہ کریں گے. ذیشان, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی بالکل, کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. جبکہ جہاں صبح 200 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا تھا, وہیں پروفٹ ٹیکنگ کے باعث جو ہے کچھ پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. اس کے بعد دوبارہ سے 129 سے زیادہ پوائنٹس کا نہ صرف اضافہ ہوا ہے, بلکہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 92,000 کی نفسیاتی حد کو نہ صرف عبور کر کے بلکہ اس پہ ٹریڈ بھی کر رہی ہے. ایز ایکسپیکٹڈ جو ہے سرمایہ دار جس طرح سے امید کر رہے تھے, گزشتہ دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 250 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی, جس کے بعد پالیسی ریٹ جو ہے وہ 17.5% سے کم ہوگا 15% پر آ گیا. مسلسل پالیسی ریٹ میں کمی کے اثرات جو ہے مارکیٹ میں پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انفلیشن کا ریٹ بھی جو سنگل ڈیجٹ میں آنے کے بعد مہنگائی کی شرح میں بھی کمی دیکھی گئی ہے, اور اس کے جو ثمرات ہیں اسٹاک مارکیٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. جبکہ سرمایہ داروں کا اعتماد نہ صرف بحال ہو رہا ہے, بلکہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر انویسٹ بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے صورت نظر آ رہی ہے کہ ہمیں اسٹاک مارکیٹ جو ہمیں بڑھتی ہوئی صورت میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ذیشان, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس کا پاکستان میں پہلی بار انعقاد ہوا. یہ کانفرنس عالمی امن و استحکام کے مرکز نسک اسلام آباد میں 4 سے 8 نومبر تک ہو رہی ہے. تقریب کا باقاعدہ آغاز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عالمی امن و استحکام مرکز کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ کیا. ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز کے انڈر سیکرٹری جنرل جین پیئر لاکر وکس, اقوام متحدہ کے پولیس مشیر, قائم مقام ڈیپٹی ملٹری ایڈوائزرز اور دیگر اعلیٰ حکام بھی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شریک تھے. کلیدی خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی امن کو ابھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے. اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی جانب سے امن قائم کرنے کی متعدد کوششوں کے باوجود بے گناہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حالت زار واضح یاد دہانی کراتی ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مہمان خصوصی جین پیئر نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا اور کانفرنس کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی. اس سے قبل نسک آمد پر آرمی چیف کا استقبال انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے کیا. پاکستان اور ملائیشیا کی افواج کے درمیان مشترکہ مشق ہریماؤ مارخور دوئم شروع ہو گئی ہے. 4 نومبر کو شروع ہونے والی مشقیں 2 ہفتے تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری رہیں گی. کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے بطور مہمان خصوصی مشق کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی, جس کا مقصد دونوں ممالک کی مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانا اور تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے. مشق سے ملائیشیا اور پاک فوج کے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے سمیت ایک دوسرے کے تجربات اور مہارت سے مستقبل میں استفادہ کرنے کے مواقع میسر ہوں گے. دونوں ممالک کے افسران اور جوانوں کا کہنا تھا کہ اس مشق کے ذریعے مہارت کے تبادلے کے ذریعے بہت فائدہ ہوگا. مشقوں میں دونوں ممالک کے فوجی دستے شریک ہیں.
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के हक में और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर में पुरअमन रैली निकाली गई। शुरका ने 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद दी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुल्क में इस्तेहकाम की फिजा कायम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। शुरका ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हक में नारे भी लगाए। कोयटा में बलूचिस्तान के सरकारी स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा के लिए सफर मुअल्लम ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बलूचिस्तान में तालीमी मयार को बेहतर करना था। एक हफ्ते तक जारी तरबियती प्रोग्राम में बलूचिस्तान के तमाम ज़िलों से तकरीबन 65 स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की। माहिर नफ्सियात और दीगर मौजू के माहिरीन ने असातिज़ा को जिन मौजू पर तरबियत दी उनमें तलबा को जज्बात में लचक और तनकीदी सोच का मुस्बत इस्तेमाल, कौम की तामीर में असातिज़ा के किरदार और तलबा की शख्सियत की नशोनुमा और इंतहा पसंदी के रुझानात और वजूहात शामिल हैं। तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस का भी इनेकाद किया गया। असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए किताबें और लैपटॉप्स भी दिए गए। और खैबर पख्तूनख्वा में हर शोबा ज़बूहाली का शिकार है। सूबाई हुकूमत इंतशार और पुरतशद्दुद एहतजाज की सियासत में मसरूफ़ है, जिससे तालीम का शोबा भी नाअहली की भीड़ चढ़ गया है। सूबे में कौम के मेमार रुल गए हैं। प्राइमरी असातिज़ा ने आज से खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुतालबात की मंजूरी तक स्कूलों की तालाबंदी जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालिबात के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। असातिज़ा का कहना है कि 2023 में पीटीआई की ही सूबाई हुकूमत ने प्राइमरी असातिज़ा समेत मुख्तलिफ कैडर की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी, ताहम अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजीजुल्लाह का कहना है कि सूबाई काबीना से मंजूरी के बावजूद अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा और मुतअद्दिद बार एहतजाज और मुज़ाकरात के बावजूद मामला हल नहीं किया गया। हमने 3 साल हुकूमत के साथ मुख्तलिफ सेमिनार्स किए, मीटिंग्स किए, उनको कायल किया, डिपार्टमेंट को कायल किया, फिर भी बात नहीं बनी। 17 जनवरी 2023 को प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हुई। साल गुजरने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर कोई वो नहीं किया, गौर नहीं किया। पूरी खैबर पख्तूनख्वा में 27,000 प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद होंगे। 1 लाख के करीब प्राइमरी असातिज़ा मेल और फीमेल वो जनाब पार्क में इंशाल्लाह आएंगे, यहाँ पे डेरे डालेंगे, पड़ाव होगा, हड़ताल होगी और उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे इन मुतालिबात का नोटिफिकेशन रिटनली हमें दिया नहीं जाता। असातिज़ा के एहतजाज के नतीजे में सूबे के 26,000 स्कूल बंद किए जाएंगे, जबकि 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी असातिज़ा एहतजाजन सड़कों पर निकल आएंगे। असातिज़ा का कहना है कि अपग्रेडेशन के साथ साथ उनके दीगर मुतालिबात भी पूरी किए जाएं ताकि वो मुअस्सर तरीके से तदरीसी खिदमात अंजाम दे सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस मसले का संजीदगी से हल निकालना होगा। एहतजाज की सूरत में लाखों बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होने का खदशा है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी, सूबे के असातिज़ा एक मरतबा फिर से सड़कों पर आ गए। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात के हवाले से एहतजाजी धरना जनाब पाक के सामने जारी है। जी हाँ, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हर शोबा ही ज़बूहाली का शिकार है, जबकि सूबाई हुकूमत इंतशार और पुरतशद्दुद एहतजाज की सियासत में मसरूफ़ है। असातिज़ा की जानिब से दिए गए जो धरना है उसमें शिरकत के लिए मर्द व ख़वातीन पेशावर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सूबे भर के 26,000 बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूलों को ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम शोबे ही ज़बूहाली का शिकार नज़र आते हैं। एक तरफ तालीम की सूरत हाल ये है कि प्राइमरी के जो स्कूल हैं उनको असातिज़ा की जानिब से बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि असातिज़ा की जानिब से धरने दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सज्जाद यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से असातिज़ा के क्या मुतालबात हैं? जी, असातिज़ा गुज़िश्ता 1.5 साल से जो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा है वो गुज़िश्ता 1.5 साल से एहतजाजों पर है। इससे पहले गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी उन्होंने यहाँ असम्बली के सामने एहतजाजी धरना दे रखा था, जिस पर लाठी चार्ज और शेलिंग हुई थी। उसके बाद सूबाई हुकूमत ने उनकी जो मेन मुतालिबा है अपग्रेडेशन का, तो उसका सूबाई जो गुज़िश्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसकी सूबाई काबीना ने, सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल उसको पास किया था, उनको अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई थी, मगर उसके बावजूद अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो गुज़िश्ता 1 महीने
इससे पहले पिछले माह उन्होंने एक बार फिर एहतजाज पेशावर असम्बली के सामने किया था और उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया था कि उनका जो अपग्रेडेशन है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो स्कूल क्लास वाइज असातिज़ा की जो कमी है वो क्लास वाइज असातिज़ा भर्ती किया जाए। जो कबायली ज़माज़ला है वहाँ प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की कमी है उसको भर्ती किया जाए और साथ ही जो रेगुलाइजेशन एक्ट 2022 है उसमें जो जीपी फंड है उसका हकदार ठहराया जाए और जो मुलाजिमीन जो 2022 में उस वक्त भर्ती हुए हैं उसको जो इंतजामिया की गफलत की वजह से उनके नाम रह चुके हैं उनको भी शामिल किया जाए रेगुलाइजेशन एक्ट में। तो उनके जो सारे एहतजाज मुतालिबात है इस हवाले से उनका आज फिर धरना जारी है। जिना पार्क के अंदर उन्होंने धरने का ऐलान दे रखा था, पुरअमन धरना और एहतजाज कर रहे थे मगर इंतजामिया हट दर्मी पर उतर आई है और जो जिना पार्क के दरवाजे हैं उनको लॉक किया है और अभी वो जिना पार्क के सामने जो मेन शाहरा है पेशावर का और मेन उस पर एहतजाज कर रहे हैं जिसमें फीमेल असातिज़ा भी मौजूद है बड़ी तादाद में और सूबे भर के जितने भी स्कूल है तकरीबन 26,000 स्कूल है जो उसमें मेल और फीमेल प्राइमरी स्कूल शामिल है उसको आज ताले लगाए गए हैं और लाखों जो तलबा है वो आज घरों को जा चुके हैं, उनकी तालीम मुतासर हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल इसकी परवाह भी नहीं है कि लाखों जो तलबा है जो उनका मशहूर का हिस्सा भी है हेल्थ और एजुकेशन, मगर एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा तादाद होती है वो प्राइमरी स्कूल में होती है। तो प्राइमरी स्कूल आज से बंद है और जो असातिज़ा है उनका यही वो है कहना है कि जब तक उनका जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा जारी नहीं होता अपग्रेडेशन का उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। अगर हुकूमत हमें पुरअमन धरने की इजाज़त नहीं देती तो हमें मजबूर करेगी और हम फिर सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे। मगर वो कह रहे कि हम पुरअमन हैं, हम बिल्कुल न रोड बंद करना चाहते हैं न कोई वो कह रहे कि स्कूल बंद करना भी हमारी मजबूरी है। हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं सुन रहे, 1.5 साल का अरसा गुजर गया है और हमारा एक ही मुतालिबा है जो हमारा जायज़ हक है जो सूबाई असम्बली से पास भी हो चुका है मगर उसके बावजूद सिर्फ एलामिया रहता है और एलामिया जारी नहीं कर एलामिया जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद हुकूमत की मंजूरी के बावजूद सजाद यूसुफजई आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अपने घर के ख्वाब की ताबीर मिल गई। अपने घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल हो गई। मुख्तलिफ शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत की है। मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज की रकम मंजूर होने पर मुबारकबाद दी है। मरियम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम की पहली किस्त अकाउंट में मुंतकिल अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली के सफर में मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हम सब आपके साथ हैं। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, फैसला आज होगा। नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। पूरी दुनिया की निगाहें आज होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात पर हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16 करोड़ से ज़्यादा, जबकि 50 रियासतों में 538 इलेक्टोरल वोट हैं। सदर मुंतखब होने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत है। अमरीकी इंतखाबात के तरीक़ेकार और इंतखाबी अहमियत के हवाले से देखिए नमरा सुहेल की रिपोर्ट। अमरीकी इंतखाबात दुनिया भर में सबसे अहम और बड़ी खबर के तौर पर लिए जाते हैं। माहिरीन की राय में 2024 के अमरीकी इंतखाब के नताइज का असर दुनिया भर पर पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाब में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में हैं और अपने बेबाक अंदाज में दोबारा मुंतखब होने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रिवायती तौर पर अमरीका के दही इलाकों में रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा हिमायत हासिल होती है। लिबरल जमात की उम्मीदवार कमला हैरिस नायब सदर के अहम ओहदे पर फाइज रही हैं और सियासत के मैदान में वसी तजुर्बा रखती हैं। जून 1946 में पैदा होने वाले साबिक सदर ट्रंप अगर दूसरी मर्तबा मुंतखब हो गए तो अपने इख्तिदार की दूसरी मुद्दत वो 69 साल की उम्र में शुरू करेंगे, जबकि कमला हैरिस की उम्र इस वक्त 60 साल है। अमेरिका में इंतखाबी अमल पर नजर डाली जाए तो हर रियासत के लिए इसकी आबादी के एतबार से इलेक्टोरल कॉलेज वोट की एक खास तादाद मुख्तस कर दी गई है। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज वोट की कुल तादाद 538 है, लिहाजा जो जमात निस्फ से ज्यादा यानी 270 वोट हासिल कर लेती है
है, इसके सदारती उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाता है। इसी बिना पर सियासी जमातों के दरमियान रियासती सतह पर मुकाबला होता है और बाज़ औक़ात इसका नतीजा ये भी निकलता है कि मुल्की सतह पर मजमूई तौर पर ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार मतलूबा तादाद में इलेक्टोरल वोट हासिल न कर पाने की वजह से सदारती दौड़ में पीछे रह जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाब के इस पेचीदा निजाम में सिर्फ 2 रियासतों के अलावा बाकी तमाम रियासतों में विनर टेक्स इट ऑल यानी अक्सरियत हासिल करने के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोट डाल दिए जाते हैं। अक्सर रियासतें फैसला कुन तौर पर किसी एक जमात के पलड़े में अपना वजन डाल देती हैं। ऐसी रियासतें जिनके बारे में यकीनी तौर पर कुछ ना कहा जा सके उन्हें स्विंग स्टेट्स का नाम दिया जाता है। मारूफ अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पोल्स मुख्तलिफ रियासतों में कमला हैरिस की बरतरी जाहिर कर रहे हैं। CNN का कहना है कि कमला हैरिस अपने इंतखाबी कैंपेन का आखिरी दिन पेंसिल्वेनिया जबकि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में गुजारेंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Vice Chancellor, Health Services Academy, Professor Dr. Shahzad Ali Khan, former MNA Zamurat Khan, representing Sweet Home, Miss Madiha Latif, Country Director Pathfinder International, Dr. Abdullah Khan, Dr. Shahid Beg, Amina Sheikh MPA, esteemed public health practitioners, experts and participants, dignitaries, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. I am very pleased to be here today at the inaugural ceremony of the Social and Behavior Change Conference hosted by Health Services Academy. I take great pride in the fact that I remained in the vanguard of the endeavors leading to the inception of this esteemed academy, as well as its transition into a university. I also pay tribute to my former Principal Secretary to the Prime Minister, Nargis Sethi. I used to call her Iron Lady. She put a very hard work for establishing this institution. I was also part of significant previous initiatives, including the inauguration of Information Resource Center. I therefore feel very elated today that our joint efforts have culminated into positioning Health Services Academy as a hub for transformative education, research, and innovation, making outstanding contribution to public health in the country. Through these forward-thinking initiatives, it has not only elevated health education, but also strengthened the healthcare landscape of our country. I commend the Academy for its dedication to creating healthier Pakistan by nurturing a new generation of skilled and compassionate health professionals. Today's inauguration of the Skills Laboratory marks yet another remarkable step in a shared journey towards providing a dedicated space for hands-on clinical training and practical learning. The Academy's continuous growth is a testament to its commitment to practical, impactful education by fostering a space where knowledge meets practice. The Academy is appreciably endeavoring to nurture skills public health workforce to meet challenges of today and tomorrow. Ladies and gentlemen, public health and technical training
are matters that I deem very crucial. I strongly believe that equipping our healthcare professionals with right skills and resources is vital not only for individuals' well-being but also for the strength and resilience of our nation. Public health is about more than healthcare. It is about creating the conditions for people to live healthier lives. It relies on skilled, well-trained professionals to carry that vision forward. Seeing institutions like the Health Services Academy advance this cause is deeply encouraging, and I am personally invested in supporting and promoting such initiatives. During my tenure as Prime Minister, I focused on laying a sound foundation for accessible, affordable, and quality healthcare for all citizens. I sought to strengthen primary healthcare, improve human resource development, and foster partnerships that could support sustainable health and advancements across the country. Special attention was given to rural and underserved areas, aiming to bridge gaps in healthcare access and ensure that essential services reach those in greatest need. Ladies and gentlemen, but presently as acting President of Pakistan and also in my capacity as Chairman Senate, I am guided by the same vision for a stronger healthcare system rooted in both resilience and innovation. I set great store of public health and technical training. The Senate continues to prioritize discussions on legislation, policies, and initiatives that foster an enabling environment for health institutions. Encouraging innovation, investment, and research in this critical sector is our priority. In particular, Senate Standing Committee on National Health Services, regulations and coordination is playing a crucial role in strengthening healthcare systems, enhances resources for health education, and supporting the development of institutions like Health Services Academy. This conference is an important event bringing together disciplines that are crucial for effective public healthcare initiatives. By understanding the social and behavioral dimensions of health, we are better equipped to design programs and policies and address the root causes of health issues and promote lasting positive change. The multidisciplinary approach championed by the Academy aligns perfectly with the holistic vision we have for Pakistan's health sector. A vision where research, innovations, and practice come together to serve the needs of every citizen. To everyone here, let this conference inspire renewed commitment to public health and technical excellence. Let us continue working together to make healthcare more accessible, effective, and impressive to the needs of our society. I am confident that the insights and collaborations emerging from this conference will contribute to healthier, more prosperous Pakistan. Here some points have been raised regarding allied wing, and if there is any matter pertains to your university, please let me know. I'll raise this issue in the Standing Committee on Health. Health and education is very close to my heart. And my father used to be the health minister in early 50s. And there were only 6 ministers in Punjab. And he was a minister for health
Local Government and Improvement Trust. And he established several hospitals, district headquarter hospital in Multan, in Muzaffargarh, in Dera Ghazi Khan, and in Mianwali. Still his plaques are there. But at the same time, there was shortage of doctors at that time. Then he started LSMF school, that you can do your medicine doctor to become a doctor after metric. And for 3 years serving in the rural areas, you can appear for MBBS. By this, he covered the shortage of doctors in Punjab and especially in the rural areas. He was also the founder of Nishtar Hospital. And now the Nishtarians have spread all over the world. And Apna Association of Latin America, they are doing tremendous job, and they are so helpful, and they are, I consider them as the lobbyists for Pakistan. Therefore, this is a noble profession, and same we did for education since 1838. And this is not my profession which I am doing. Our profession was the same profession of the Holy Prophet for teaching and preaching. But we have entered into this profession, and whatever possible I am doing, and inshallah I wish that I should be successful. Thank you very much. Pakistan Zindabad. कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी 14वीं बैनुल अक़वामी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेल्थ सर्विसेज एकेडमी सेहत आमा की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का आने वाली नस्ल को सेहत के शोबे में हुनरमंद बनाने में कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि सेहत आमा की सहूलियात और तकनीकी तरबियत से कौमी सतह पर इस्तेफादा किया जाएगा। और गजा और लबनान पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शिमाली गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया पर 2 घरों में सह्यूनी फौज की बमबारी में 20 जबकि गजा शहर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इजरायली फोर्सेस ने गजा के कमाल उद्वान हस्पताल के मुसलसल मुहासरे के बाद आज फिर बमबारी की है, जिसमें डॉक्टर्स और मरीज जख्मी हुए हैं। नर्सरी में मौजूद बच्चे भी इजरायली बर्बरियत से महफूज न रह सके। मगरबी किनारे पर भी इजराइल की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, जिसमें एक फलस्तीनी शहीद हो गया। और मजीद खबरों में आपको बताते हैं कि तुर्किया के सदर ने कहा है कि गजा में मौजूद सदी की इंतहाई वहशियाना नस्लकुशी जारी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में 40वीं इस्लामी ताउन तंजीम की माशी और तजारती ताउन की मुस्तकिल कमेटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइली हमलों से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। लाखों इंसानों को अद्वियात और गजा से महरूम करके मौत के मुँह में धकेला जा रहा है। तुर्क सदर ने कहा कि इस्लामी दुनिया को इख्तलाफात को एक तरफ रख कर फ़लस्तीन और लबनान के अवाम की जायज़ जद्दोजहद में मदद करनी चाहिए। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर कश्मीर असम्बली के 5 रोज़ा इजलास के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हुकाम ने इलाके में भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात कर दी है। बड़े पैमाने पर चौकियां कायम की गई हैं और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। और तिब के शोबे में पाकिस्तान के लिए एजाज़ एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुआलिज प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नसीर को रॉयल कॉलेज ऑफ ईडनबर्ग बरतानिया से फेलोशिप हासिल कर ली। रॉयल कॉलेज ऑफ ईडनबर्ग बरतानिया में होने वाली तकरीब में दुनिया भर के नामवर डॉक्टर्स ने शिरकत की। गैस्ट्रोलॉजी के शोबे में बेहतरीन रिसर्च और खिदमात के शोबे में फेलोशिप से नवाजा गया। डॉक्टर आदिल नसीर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शोबा गैस्ट्रोलॉजी के सरबराह हैं।
वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुनामी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जापान की तजवीज़ पर 2015 में सुनामी से आगाही का दिन मनाने का फैसला किया था। इस दिन को मनाने का मकसद खौफनाक तूफ़ान से होने वाली तबाही से बचाव के लिए शाऊर बेदार करना है। सुनामी आमतौर पर समंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत के सबब ज़लज़लों की वजह से पैदा होते हैं। सुनामी एक ऐसी कुदरती आफत है जो शाज़ो नाज़िर ही आती है, लेकिन उसके आने के बाद शहरों के शहर उजड़ जाते हैं। सुनामी एक ऐसी कुदरती आफत है जो कभी कभार ही वकू पजीर होती है, मगर इसके नतीजे में साहिली इलाकों और शहरों में तबाही का दायरा बहुत वसी होता है। इस दिन के मनाने का मकसद समुद्री तूफान से होने वाली तबाही से बचाव के लिए शाऊर बेदार करना है। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। इंडोनेशिया में 2004 के आने वाले सुनामी में 2,27,000 इंसान मौत के मुंह में चले गए। तबाही का दायरा बहुत वसी था। इसके फौरी बाद जापानी शहर कूबे में आलमी बिरादरी के आला दिमाग सर जोड़कर बैठे और सुनामी से होने वाली तबाही को कम करने के लिए पहला 10 साला आलमी मुआहिदा ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन तरतीब दिया। इसे बैनुल अक़वामी सेंडाई मुआहिदा कहते हैं, जो 15 बरस के लिए तरतीब दिया गया है। दुनिया में 70 करोड़ अफराद नशेबी साहिली इलाकों में रहते हैं, जिन्हें सुनामी और समुद्री तूफानों के खतरात का सामना करना पड़ता है। मुल्क के साहिली इलाकों को सुनामी से महफूज रखने के लिए आगाही फैलाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम से भी अवाम में शऊर बेदार हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली जो पट्टी है, इसमें जो है हम माहीगीर और जो दीगर वहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे हम उन्हें अवेयरनेस सेशन देते हैं, ताकि जो साहिल के करीब जो शहर आबाद हैं और जो माहीगीर बस्तियाँ आबाद हैं उनको हम बता सकें अगर सुनामी आता है तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सुनामी की तबाही से बचने के लिए तिमर के जंगलात साहिली मुहाफिज का काम अंजाम देते हैं। मुल्क में विफाक, पाक बहरिया, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों और NGOs के ताउन से एक अशरे में 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मैंग्रोव्स के पौधे लगाए जा चुके हैं। मियानी, केटी बंदर, खारोशान, शाह बंदर, पोर्ट कासिम, ये तमाम एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने मुख्तलिफ प्लांटेशन जो है मैंग्रोव्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ लगाई हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि आफात अर्जी से बचाव के लिए तहकीक का दायरा वसी किया जाए, ताकि कुर्राए अर्ज और नौ इंसानी की बका को लाहक खतरात कम किए जा सकें। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, जिक्र करेंगे स्मोक का। लाहौर एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में सर फहरिस्त है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 आज रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 3 दिन तक 600 से 700 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स हो सकता है और 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो चल रही हैं मशरिक से मगरिब तक, भारत से जो हवाएं आ रही हैं वो काफ़ी आलूदा हैं। अगर बात की जाए तो मशरिक से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मोक आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में नई दिल्ली इस वक्त 408 के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इराक़ का दारुल हुकूमत बगदाद तीसरे नंबर पर है। और जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो धुआं छोड़ने के तदारुक के लिए कारहाय नुमायाँ सर इंजाम दिए जा रहे हैं, उसमें जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर जो है वो सख्ती से जुर्माने किए जा रहे हैं, जिसमें चिंची रक्षा और 2 स्टोक रक्षा और दीगर जो व्हीकल्स हैं उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। इसके अलावा जो सड़कों पर गाड़ी के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा एहतियाती तदबीर में स्कूलों में प्राइमरी तक जो है वो छुट्टियां दी गई हैं। मास्क का कहा गया है कि आवाम जो है वो बच्चे बूढ़े ख़ास तौर पर मास्क का बाहर जब निकलते हैं तो लाजमी इस्तेमाल करें। और जो इस पर कहा गया था CM पंजाब की जानिब से कि भारत को ख़त भी लिखा जाएगा, तो उसकी भी जो है वो कुछ तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं। इसके लिए एहतियाती तदाबीर का भी आवाम को सख्ती से कहा जा रहा है। जी।